everyone. You're most welcome in my podcast, The Special Hero. And I'm so proud to present today another father, Mr. Amit Kulkarni. He is a proud father of twin girls, and one of them has autism. So, I would say he is the coolest dad ever who has a child with autism. So, I would like him to introduce himself, and let's see what he has to say, what he has to add, his journey about being a special parent. Yeah, so thanks, Abhilasha. Thank you very much for this opportunity. And I would like to introduce myself. Yeah, so we are usually introduced by our professions, right? So I'm a lead data engineer, a software engineer at HSBC, India. And yeah, as you said, like I'm a proud father of twin daughters. Yes, no doubt. Yeah, and out of these two, one has autism, and she's a 12-year-old. Like both of them are 12-year-old. Yeah, and yes, the journey is continued from last 12 years. Yeah. So, how was the experience? I'm very sure that when you had two Lakshmis, at your house, बहुत खुशी हुई होगी. लेकिन Yeah. how was that? क्योंकि nobody knows autism, right? I think everyone who comes here, all of them share, including me. We didn't know autism. We had to Google it. This is a Yeah. thing. So, आपको कैसा लगा? मतलब कैसे experiences पहले हुए? During pregnancy, was there any issue? Or no? Or then जब आप लोगों को realization होने लगा, what was the change? How did you really realize that Yeah. So actually, when you have twin kids, right? So you have a very easy measure in front of you, right? So one kid is like talking, and one kid is behaving in a certain way, but other is totally different and unusual, right? So our journey was कि हम लोग बहुत डॉक्टर के पास जाते थे. We started from 1.5 years कि देखो ये बेटी जो है हमारे दूसरी, तो ये बोलने की तो कोशिश नहीं करती, बट नाउ शी स्टार्टेड बीइंग अलूफ इन हर वर्ल्ड. तो ये पेंसिल्स एक जैसे इतने लाइन में लगाती है, पिक्चर्स जोड़ रही है. तो एक छोटे बच्चे से हम लोग ये ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करते ना कि वो पेंसिल्स एक सीधे लाइन में अरेंज कर रही है, या फिर बहुत देर तक एक ही कोने में बैठी है और खेल रही है. So yeah, it is better if kids are quiet than parents are happy. But it is unusual as compared to other daughter who was trying to speak, going to mingle with kids and all. तो हमको थोड़ा सा वो अजीब लग रहा था. और हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि हमने बहुत डॉक्टर को अप्रोच किया. मेरे हिसाब से नंबर 9 से 10 है. 10 डॉक्टर्स को हमने अप्रोच किया, और उन्होंने बोला कि तो उन्होंने बोला कि यू आर टू मच कंसर्न अबाउट योर डॉटर्स. आप जाओ घर पे, ऐसा कुछ नहीं, इट इज वेरी नॉर्मल, धीरे-धीरे कैचअप हो जाएगा. हाँ, हो जाएगा वगैरह. बट वी वर सर्टन, एंड टू बी ऑनेस्ट वी आर लाइक वेरी रियलिस्टिक, राइट? सो वी नेवर लाइक शुगर कोटिंग, राइट? तो हम उस चीज पे थोड़ा सा रिजिड रहे कि कुछ तो इशू है, एंड वी ट्राइड टू रीच द राइट डॉक्टर. एंड समहाउ सर्व शिक्षा अभियान is the program run by government of India. उसकी एक लेडी ने, she was just trained for 15 days, थोड़ा इस वर्ड्स को लेके बात किया. We were in the queue in the hospital. तो हमारे होम टाउन में थे, हम लोग अमरावती में थे, नॉट इन पुणे और मुंबई, मेट्रोज में थे. तो बोले कि जैसे आप तरीके से जब बात कर रहे हो दोनों, और जिस तरीके से आपने डिस्क्राइब किया है कि बच्चे ऐसा ऐसा करते, मुझे लगता है इसको ऑटिज्म है. तो हाँ, so she was just trained for 15 days by सर्व शिक्षा अभियान. एंड देन आई सर्च ऑन इंटरनेट, विकिपीडिया पे देखा मैंने कि ऑटिज्म क्या है. जो एक सेकंड में मुझे समझ में आया कि हाँ, अरे ऑटिज्म ही है. ओके इट इज ऑटिज्म, देन ओके फाइन, देन या. सो दैट वाज लाइक आई वाज रिलीव्ड बाय द फैक्ट दैट आई रियलाइज्ड देयर इज समथिंग व्हिच इज नेम्ड ऑटिज्म, एंड नाउ वी कैन स्टार्ट हेल्पिंग हर accordingly. That's amazing, sir, because आपने यूज किया कि I was relieved. I was relieved. ये बहुत ही अच्छी बात है, एंड आई विल एनकरेज द न्यू पेरेंट्स, क्योंकि उस टाइम में आप भी न्यू ही पेरेंट थे उस ऑटिज्म डायग्नोसिस के लिए, कि रिलीव्ड. तो बजाय आजकल पेरेंट्स जो है बहुत एंग्शियस ज्यादा हो जाते हैं. कई बार तो बच्चों से ज्यादा एंग्शियस पेरेंट्स ही होते हैं. That was very good. Yeah, it's like, see, anxiety was there like in family, right? So we never said that कि उसको कुछ नहीं है. We were always start with तो फैमिली में बताते थे कि देखो हमें पता चला है कि उसको ऑटिज्म है,
इसका ये प्रोग्नोसिस है, ऐसा ऐसा आगे होने वाला है और हम सबको मिलके काम करना है, दादा दादी हमको। तो वी आर वेरी ओपन। और जैसे भी मैं पड़ोस में जाता था, कहीं भी जाता था, तो आई टू टेल स्टार्ट विद शी हैज एन इशू, शी हैज ऑटिज्म। तो उससे ना चीजें एकदम आसान हो जाती थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, लाइक आई जस्ट डोंट वांट टू से आई एम वेरी कूल। मैं भी एक इंसान हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सा खराब लगा कि अरे इसका थोड़ा सा लॉन्ग जर्नी, और मे बी इट विल बी अ नेवर एंडिंग जर्नी। बट सी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज यू आर पार्ट ऑफ द जर्नी, यू रियलाइज वेयर यू आर गोइंग, राइट। और टू बी ऑनेस्ट, वाइफ वगैरह को बहुत इमोशनली डिस्टर्बेंस फील हुआ। ओके, शी इज स्ट्रॉन्गर देन मी, बट शी इज अ मदर, राइट। मदर, सो शी क्राइड एंड लाइक उस टाइम पे उसने बहुत सारा ट्राई किया समझने का वगैरह वगैरह, बट शी like collected herself better than me. Okay, and like I am here giving the interview, but real hero behind her progress is her mother, because she takes her to all therapies. I would She like has her more as well understanding. to give the interview then. I would like Yeah, definitely she will give an interview, definitely. She was telling me that उसने अभी तक यानी like ये milestone achieve नहीं किया, तो interview क्यों दे रहे हो? मैंने बोला जितना वो उसने अब तक achieve किया है, exactly. That's a milestone in itself, and I think it is about helping other parents, Yes. not talking about her some milestone. Yes, it is not about achievement. It's just about journey. Yeah. Exactly. Yeah. So, journey was like, to be honest, very fair. Yeah, it was not the case where we were treated unfairly somewhere, or we didn't get the right treatment. Yeah, but to the all parents in India, I would like to tell that you be in search for the right therapy or the therapist till you get a satisfactory answer to your question. तो आप इस चीज को लेके मत बैठिए कि अरे ऑटिज्म है तो क्या होगा आगे। ओके, ऑटिज्म है आपको पता चला है, रियलिस्टिक थेरेपिस्ट से और किसी थेरेपिस्ट से आप पता कीजिए कि इसकी डिग्री क्या है। ऑटिज्म इज अ वाइड अम्ब्रेला। कुछ बच्चे अभी एजुकेशन में हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं। मेरी बेटी लिमिटेड बोलती है, मींस लाइक शी हैज 4 to 5 words of vocabulary, but she is very verbal in terms of AAC. Yes. iPad से वो now she can tell her emotions as well. तो थोड़ा उसके बारे में कैन यू जस्ट एक्सप्लेन, क्योंकि बहुत सारा लोगों के मन में है डाउट कि एएसी जो है वर्क करता है, इज इट कॉस्टली, और मतलब कैसे, जैसे मतलब कैसे यूज कर सकते हैं। तो चूंकि यू आर अ यूजर, आपकी बेटी यूज करती है, तो कैन यू जस्ट लिटिल बिट एलाबोरेट कि कैसे यूज करना है? डेफिनेटली। तो ये एएसी बोले तो लाइक जो सपोर्टिव वॉइस सपोर्टेड आपको एक ऐप है, आवाज मोस्ट फेमस ऐप है। ओके, एंड जनरली वो पहले आईपैड पे ही था, बट नाउ इट इज अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड एज वेल, राइट। सो लाइक द वे थेरेपीज आर कॉस्टली एज कंपेयर टू दैट, buying a tab is not a big deal for parents nowadays, right? So, and what I encourage is they should go and buy an iPad if the kids are minimally verbal. iPad या फिर एक टैब लीजिए जो आप अफोर्ड कर सकते हो, और एक अच्छे थेरेपिस्ट का आप सपोर्ट लीजिए एंड स्टार्ट यूजिंग एएसी। या एक जो मिथ है इसके बारे में कि अगर बच्चा एएसी यूज करने लगा तो वो कभी बोलेगा नहीं, तो नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आपका बच्चा एएसी यूज करता है तो इवेंचुअली वो बोलेगा, अगर उसके डिग्री ऑफ ऑटिज्म कम सीवियर है तो बोलेगा। और एक चीज की मैं गारंटी देता हूँ, जब से आप किसी चीज का सहारा लेते हो कम्युनिकेशन के लिए, आपके घर में शांति हो जाएगी। सो लास्ट 3 years, अगर आप मुझे 3 से 4 पहले, कोविड से पहले आप मुझे इंटरव्यू, आई वॉज नॉट इन पोजिशन टू गिव एन इंटरव्यू, राइट, क्योंकि हम लोग ये चीज में सेटल ही नहीं हो पा रहे थे कि उसको कैसे बात करवाए उससे। और she used to pull us to the thing she liked, right? जो चीजें उसको चाहिए उसको पुल करती थी, या फिर she used to just show anxiety, right? Frustration show करती थी कुछ उसको अगर चाहिए तो। But from the time iPad came, right? And from the time I would thank Vedali Inamdar, who is our therapist, right? So she's from Pune, she practiced in Kothurud, and she's a very good, brilliant therapist, I would say. And she solved our problem within 3 weeks maybe, yeah. So Adisri started using the iPad within 3 weeks of training, 3 visits, right? So she was so good, yeah, and her methods and all. So she arranged the icons and all. So for parents, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बच्चा पिक्चर्स अरेंज करके सेंटेंस फॉर्म करता है, जैसे मुझे मिल्क चाहिए, मुझे खाना चाहिए, इस तरीके से वो आईपैड एक साथ अरेंज करके वो बच्चा बात करता है। और ये जैसे ही हमने आईपैड यूज करना चालू किया है, शी स्टार्टेड स्पीकिंग नॉट थ्रू हर माउथ बट यूजिंग द आईपैड। तो देखो उससे ना चीजें आसान हो गई।
So now she start demanding कि मुझे शॉप में जाना है, मुझे मॉल में जाना है, मुझे रेस्टोरेंट जाना है, मुझे वॉक पे जाना है, आई वांट टू गो टू द जिम. ओके, सो धीरे धीरे चीजें ना वो बात करने लगी, तो हमें बहुत मजा आने लगा फिर कि अरे देखो इसके मन में ऐसी चीजें होती है, राइट. सो इस टाइम पे मुझे ये खाना रहता है. इट इज नॉट जैसे इशू आता है, अगर आदमी अगर कम्युनिकेट ना कर पाए तो इशू आता है. वो पूरा दिन खाने की चीजें लेके बैठते थे, बिकॉज आई थिंक उसको लगता होगा कि अगर ये लेके जाएंगे तो फिर बाद में मैं कैसे मांगू इनसे, मुझे तो कुछ वे नहीं है. तो वो आईपैड आने से घर भी क्लीन रहने लगा. शी ईट्स एट हर रेगुलर टाइम. शी आस्क्स व्हाट शी वांट. जैसे कि पोमोग्रेनेट खाना है तो वो बोलती है मुझे पोमोग्रेनेट दो. ओके, सो दैट्स हाउ थिंग्स आर इजियर यूजिंग द AAC, राइट. आवाज आप यूज करके बहुत आसानी हुई, हमें तो बहुत शांति मिली. सो दैट्स हाउ इट इज. वेरी कॉस्टली. डू यू थिंक दैट इट इज अफोर्डेबल? नो, yeah, it is not costly at all, right. So iPad एक थोड़ा सा महंगी चीज है, बट आप टैब एक 9-10 हजार का डेफिनेटली ले सकते हो. एंड ऐप का भी सब्सक्रिप्शन आई थिंक जून मंथ में उसका एक सेल रहता है, वहां पे हाफ प्राइस पे आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है. एंड वंस यू सब्सक्राइब इट इज थ्रू आउट योर लाइफ टाइम. ओके, इट इज लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन. व्हेन यू बाय आवाज इट इज फॉर लाइफ टाइम. एंड आई थिंक व्हेन आई बॉट इट वाज आई थिंक अराउंड 5,000. थोड़ा सा उसमें बढ़ोतरी हुई होगी, बट it is not costly at all. ऐसे lakhs में नहीं है, thousands में भी नहीं है. It's like very affordable to everyone, and everyone should give a try who are like struggling to get their voice out of their children. Yes, right? So, because ये तो बहुत बड़ा इशू है. कम्युनिकेशन तो है, मतलब कम्युनिकेशन है, सोशलाइजेशन. अगर ऑटिज्म को सम अप करना है तो यही दो चीजें होती हैं. तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कैन बी इजीली रिजॉल्व बाय यूजिंग AAC. और आवाज के बारे में यू आर हाईली रेकमेंडिंग. तो जितने भी नॉन वर्बल चिल्ड्रन है, द पेरेंट्स डेफिनेटली शुड ट्राई दिस, इजंट इट सर? दैट्स या डेफिनेटली. या दे स्टार्ट विद PECS, पिक्चर एक्सचेंज प्रोग्राम, PECS. अच्छा, लेकिन हम फोटो प्रिंट कर करके परेशान हो गए थे. किस मैं जो पेरेंट जर्नी में इस चीज के, तो वो दे कैन रिलेट टू मी. हमने एक सेट ऑफ फोटो प्रिंट किया जब वो छोटी थी, उसके फोटो टेकिंग बाथ, ईटिंग डिनर एंड ऑल. एक सेट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा. अरे कितने बार हम लोग प्रिंट लगे. एंड देन आईपैड, इट वाज लाइक इट वाज ऑल ऑफ सडन आईपैड आया, वो सीख गई एंड एवरीथिंग वाज इन दैट वन सॉर्टेड. या इट्स सॉर्टेड. एंड देखिए आईपैड में आप आपका खुद का वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो. जैसे मोस्ट ऑफ द वॉइस इन आवर आईपैड इज रिकॉर्डेड ऑफ माय डॉटर, अनदर डॉटर और माय वाइफ मोस्टली. और आप पिक्चर भी कस्टम यूज कर सकते हो उसमें. तो ऐसा है, मींस लाइक देयर आर सो मच कस्टमाइजेशन, सो मच कन्वीनियंस. यू कैन कैरी आईपैड. हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो आईपैड लेके जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं या फिर हम लोग घूमने जाते हैं, एंड तो कभी ऐसा हमको रेस्ट्रिक्शन नहीं आता. सो बिकॉज आईपैड इजीली चार्जेबल, वी कैन इजीली ऐड द फोटोज देयर एंड वी कैन ट्विक अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, राइट. तो मतलब कि लाइफ आप लोगों की ट्रांसफॉर्म हो गई बिकॉज ऑफ आवाज आने के बाद बहुत अच्छा हुआ है. Wow, that is really very big help, I would say. मतलब I was not really imagining this. मतलब I have heard कि हाँ बहुत easy है, but actually never met someone कि जैसे आपने बताया कि आप use करते हैं on a regular basis. और so मतलब जो इश्यूज हैं, आप क्या बोलेंगे, जर्नी कैसी है अभी तक? और मतलब क्या आपके एक्सपेक्टेशंस तो बहुत गलत वर्ड है शायद यहाँ पर, लेकिन हाउ यू आर comfortable with everything which is going on, and do you think that in future you have higher hopes because of AAC, or what else you are expecting कि vocational courses join करना is better, or will you be opting for NIOS kind of thing? How exactly it is going to be for you? या तो उसके बारे में मेरा बहुत क्लियर व्यू है कि आपका बच्चा आप लाइक अगर सीख पा रहा है, ही इज अ प्रो इन एजुकेशन या फिर किसी सब्जेक्ट में अच्छा है, तो लेट हिम टेक द एजुकेशन. इट इज बेस्ट वे, राइट, टू थ्राइव इन आवर सोसाइटी. वो एक स्ट्रक्चर्ड वे टू सक्सीड इन आवर सोसाइटी. इफ he has academic ability and he is able to go to the school and learn some skills which are like coding or writing or something like that, then it is nothing like that, right? So he can be fit in the society very easily, right? मगर अगर केस मेरे जैसा है, जैसे मेरी बेटी थोड़ी काइंड ऑफ सीवियर स्पेक्ट्रम पे है, okay, she is not moderate or low, so she is severe, okay, so she has inability, or she can say she find it hard to learn
writing and reading, right? So in that case, we are aiming for a vocational course itself. Vocational course. And most likely cooking, yeah, because I would share video with you, okay? So she cuts very fluently. She has a lot of interest in cooking, right? So she has not started, okay, but she started cutting things, right? So she started cutting, sorting things, and she's on her way, right? So most preferred skill I would like to teach her is cooking, yeah? Because she have figured yeah, out because that cooking is something yeah, she will enjoy. yeah, she likes eating, and to be honest, she likes cooking as well, okay? So she directs her mother to cook in a certain way. कि पोहा बनाना है तो आप अभी ये डालो, बाद में ये डालो. But as That's she is wonderful, still yeah. in her journey, so we don't allow her. But there is a plan, right? So step one, she started cutting vegetables. She started cutting the suka meva and all, right? So now here or not, she will cook eventually with all the safeguard in place and all. But that's what we are aiming, right? So मुझे यही बोलना है सब पेरेंट को कि आप जो ऐसा वर्ड नहीं यूज करना चाहिए कि सब लोग जिस प्रवाह में जा रहे हैं आप उसी प्रवाह में मत जाइए, क्योंकि किसी बच्चा 10th में और इंजीनियरिंग में चला गया तो आप यू आर फोर्सिंग योर चाइल्ड और यूर सेल्फ टू डू एन इंजीनियरिंग. और सब कोई बच्चा है जो गाना गा रहा है तो आप भी ट्राई करो कि कैसा तो भी गाना बोल दे और मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ इससे. सो आई थिंक थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच रखिए. आपके बच्चों को अगर पोट्री अच्छी लगती है उसको पोट्री सिखाइए, अगर उसको ड्राइंग अच्छा लगता है ड्राइंग सिखाइए, व्हाट ही लाइक्स, ओके. एंड टू बी ऑनेस्ट देयर आर सम किड्स आई सॉ विद अ सुपर पावर कि बहुत अच्छा मैथ्स करते हैं या फिर बहुत अच्छा पेंटिंग करते हैं. तो हमको सुपर पावर अब तक यही रियलाइज हुई कि ये कुकिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा करती है. but that is though I believe cooking is super power, okay? Yes, oh my god, of course it is, of course. But इस दुनिया में ऐसे जो स्किल जो हर एक घर में मिलते हैं उसको सुपर पावर नहीं बोला जाता. नहीं बोला जाता, लेकिन एक्चुअली अगर नहीं आता तो खाना रह के भी फिर कोई फायदा नहीं है. If you so I highly appreciate the kids who are able to do a very complex maths puzzle and some artistry, right? बहुत अच्छा गा पाते हैं या फिर अच्छा आर्ट पीस बना पाते हैं. बट मैं उस पेरेंट के लिए भी बात करना चाहता हूँ जिनका बच्चा मेरे जैसा है कि he has not that super power but kind of a regular super power. तो आप उस तरीके से उसको होन कीजिए. So I think life will be very better. I have a like different question for you, like generally क्योंकि अभी तक तो काफी लोगों से बात हुई है मेरी. Sir, you are how you became so cool? Were you like this always? Because आप जैसे you are approaching बहुत ही अच्छी बात है. और I would say कि ये मतलब बहुत सारे न्यूरोटिपिकल पेरेंट्स और न्यूरोटिपिकल पेरेंट्स के बच्चों के पेरेंट्स में भी नहीं होता कि यू हैव एक्सेप्टेंस आपके अंदर बहुत ही अच्छा है. तो आप ऐसे ही हैं और समथिंग यू डिड, मे बी सम काइंड ऑफ मेडिटेशन, विपासना और समथिंग लाइक दैट कि यू हैव डेवलप्ड दिस. आई डू हैव अ क्वेश्चन फॉर दिस. Yeah, definitely. Yeah, to be honest, I want to confess here, I was a very anxious child. Wow. I was very, very anxious child, and I was to find it very difficult to face the academics. Yeah, so I was always having a pressure to perform better in exams. Yeah, and I never failed till 12th standard. But when I failed, then I started learning how to recollect myself. So that is acquired skill. This is not something I born with. I am very anxious person by birth, and this is our acquired skill. Wow. तो फिर मैंने धीरे पहचाना कि भाई लाइक क्या चीजें होती है जो हमको एंशियस करते हैं. लैक ऑफ क्लैरिटी आपको एंशियस करते हैं, राइट? आप एंड रिजल्ट के बारे में सोचते हो तो आपको एंशियस करता है, ओके. बट आपको जब क्लैरिटी होती है और व्हेन यू आर रेडी टू बी पार्ट ऑफ द जर्नी, तो आपको किस चीज का एंजाइटी होगा? यू हैव एक्सेप्टेंस, यू हैव क्लैरिटी. ये आपने एक्सेप्ट कर लिया आपके बच्चों के ये प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है इसके बारे में आपको क्लैरिटी है. आपको थेरेपीज अवेलेबल है, हेल्प अवेलेबल है, एंड you are ready to afford it, right? You have by God's grace you have some you can afford the therapist, right? So what's the problem, right? Keep on working with your kids, right? So that's how it is. So it is developed skill set. Like it's not I'm not like that way from childhood. But that is like very admirable, क्योंकि ज्यादातर जो भी जर्नीज है, आई थिंक इंक्लूडिंग माइन ऑल्सो, जब न तब हम लोग, जैसे कि मेरी बेटी को सीजर्स बहुत ज्यादा आते हैं. शी इज एपिलेप्टिक नाउ, सो इट इज वेरी वरीइंग, वेरी लाइक इट कीप्स मी ऑलवेज ऑन माई टोज कि अब क्या होगा, यू नो. लेकिन यू आर इंस्पायरिंग, क्योंकि ऐसा तो है नहीं
कि हर एक बच्चों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है ही, बट द सेम प्रॉब्लम होती यू है। सेड कि जो कि एंड रिजल्ट भी के लिए भी क्या एंशियस होना, और जो जर्नी है उसके लिए भी क्या एंशियस होना. सो आई वुड एक्चुअली सजेस्ट ऑल द पेरेंट्स कि आप ये वाली चीज जो है सर, आपने जैसे भी की, आपने एक्वायर किया एक्चुअली इन योर लाइफ टाइम, तो ये बहुत जरूरी है, स्पेशली आफ्टर फेलियर. दैट इज कि टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन और जस्ट बी cool with it. That is very unique. One more thing sir, that how about the acceptance, क्योंकि एक हम लोग और बहुत ज्यादा सफर करते हैं, मतलब जो हम स्पेशल पेरेंट्स हैं, कि एक्सेप्टेंस बड़ा लो होता है, और देन इट इज वेरी बड़ा डिस्करेजमेंट होता है पेरेंट्स को इन जनरल, कि लोग इग्नोर करते हैं, दे डोंट वांट टू आस्क यू. कई बार तो इतना इग्नोर करते हैं जैसे कि आप इनविजिबल हो जाए, आप इनविजिबल है. हाँ, ऐसा बिहेवियर इवन आई हैव फेस्ड, जैसे कि यू डोंट एग्जिस्ट देयर, दे आर देयर फिजिकली बट they will not even acknowledge your presence or आपके बच्चे के presence. Okay, the acceptance society you are talking about. Yes. Oh, sorry. To be honest, I was very fortunate. जैसे मैं इधर पुणे में रहता हूँ मेरे सोसाइटी में, so we were able to go into the all 10 days of Ganesh festival and perform on stage as well, right? So people in Aditya terraces here, right? So they are very helpful. So sometimes you are lucky, okay? But to be honest, इसमें मेरे वाइफ का contribution बहुत जाता है. अच्छा. तो देखिए, आप किसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपका बच्चा बहुत टेंट्रम कर रहा है, ओके, एंड पीपल अराउंड यू आर मेकिंग फेसेस एंड ऑल, राइट, so she has a very firm stance there, so she can hold herself very well and I learned from her. Wow. मैं एंशियस होता था आज से 5 साल पहले, मुझे भी थोड़ा लगता था कि अरे ये तो फ्लोर पे लेट रही, हम लोग शॉपिंग मॉल में है, ये फ्लोर पे लेट के लाइट्स देख रही है, तो अब कैसा करे. तो मेरी वाइफ बोलती थी ये नॉर्मल बच्चे भी करते हैं, उसको करने दो. तो हमने फिर ग्रेजुअली धीरे सोशल, और देखिए मैं आपको एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, जब आप सोशल एनवायरनमेंट में होते हो, अगर आप एक्सेप्ट करके वहां पे खड़े हो, इट्स लाइक यू आर नॉट एंशियस एंड यू आर रेडी टू हैंडल योर किड्स प्रॉपर्ली, तो आजू बाजू के सारे लोग वैसे ही बिहेव करें. एंजाइटी इज कॉन्टेजियस, राइट? सो अगर आप अरे देखो ये कैसा कर रहा है, उसको उठाने की कोशिश करो, पकड़ के, यू आर गेटिंग एंशियस, whole surrounding around you get anxious, whereas if you are holding yourself very firm and हाँ ठीक है, थोड़ा सा ऐसा कर रहे हैं ना, थोड़ी देर में हो जाएगी ठीक, तो सब लोग बोलते हैं हाँ अरे हाँ बच्चा थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, बट या कैन अंडरस्टैंड. So I think it is the way of being of yours which has been radiated around. आप जैसे हो वैसे आपका एनर्जी वैसी ही जाती है, ट्रांसफर होती है. एनर्जी के बारे में बात करने के लिए मैं इतना मैं स्टूडियोज बंदा नहीं हूँ कि मैं इतना साइकोलॉजिकल लेवल पे जाके बात करूं, बट मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, इट इज ऑल रिफ्लेक्शन ऑफ यू बीइंग, योर वे ऑफ बीइंग. आप शांत हो, आप आपके बच्चे को एक्सेप्ट करके वहां पे खड़े हो, वेदर इट्स अ शॉपिंग मॉल और क्राउडेड एरिया, तो सब लोग शांत खड़े रहते हैं. Yeah, it takes time because see, generally ऐसा देखा नहीं जाता लोगों से कि it's like लोगों ने ऐसा देखा नहीं होता पहले कि अरे ये बच्चा एकदम से नीचे है, या फिर she snatched someone's ice cream. Yeah, something like that maybe. Very awkward, right? But then we tell people that अरे Sutara, she has autism and she has some problem, so we'll buy her another one, your daughter. And yeah, so they then cooperate. अरे नहीं ठीक है, फिर अच्छा है. So that's how they behave. Mostly, yes. Mostly. But to be honest, I was very lucky. So I never faced much instances like this. But whenever we face, we gradually develop that muscle to be cool on every occasion. Okay. So ये भी एक develop skill है. Sorry, we are not like that before. So मेरे wife ने धीरे सीखा है. It's like my wife was better at that. Okay. Then we learned gradually how to stay calm in the crowded places as well, right? With your daughters. मतलब बहुत अच्छी बात है, and I am like, and now I am very curious to meet your wife, कि जिन्होंने आपको भी इतने अच्छे से सपोर्ट किया. She has supported you. मतलब ये उन्हीं से पता चलेगा कि if you didn't have that skill, how she helped you to have that along with her. So ये जो बहुत रेयर सी चीजें हैं एक्चुअली, ये जो मतलब हम लोग जो बात ही कर रहे हैं वो इसीलिए है क्योंकि स्पेशल पेरेंट्स
जो है वो क्रिएट कर दिए जाते हैं कि यू आर स्पेशल। बच्चे तो राइट बच्चे ही होते हैं, दे आर चिल्ड्रन, लेकिन जो सोसाइटी है दे पुश यू इन सच अ वे कि यू हैव टू यू फील लाइक ओ माय गॉड, ओके आई एम सेपरेट फ्रॉम दिस जनरल क्राउड। बट द गुड थिंग इज समहाउ you and your wife have supported each other along with your child. And no, but you didn't stop, you acquired, you helped your daughter with the AAC app, and now you're confident. I don't even feel कि आपके अंदर वो वाली फीलिंग है, वो एक सैडनेस होती है ना, राइट राइट तो वो नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। एंड मतलब कि शी इज स्टिल ग्रोइंग अप एंड या you have empowered her. I'm यस very sure, or you have a plan also for future कि वो क्या या कर या सकती है। So that's like commendable. I या मतलब I will request all the parents कि इसको देखें, ऐसे ही होनी चाहिए, ताकि हम लोग ना बजाय एक आइसोलेटेड ग्रुप के, एक हम लोग नॉर्मल ग्रुप ही है, वो लोगों के पास राइट ये मैसेज या जाना चाहिए। So I was very very happy to talk to you today, sir. या या I almost felt that, yeah, it's a normal thing. In my head, I have this kind of, utopia, but I have never seen anywhere. So I या want ये वाला जो आपका जो आपने बात कही कि हमारा जो ये जो आपकी जो एनर्जी है, that is, contagious. So ये या आपकी जो cool energy है along with your wife, ये भी contagious हो through screen, and या everyone या should feel. Or would you like to add something, या डेफिनेटली या सो देखिए जैसे हम लोग इस जर्नी में आते हैं तो जी मेरे जैसी आपकी जर्नी रहेगी। ओके थोड़ा सा आप एंशियस हो गए और आप दुनिया की हर चीज करना चाहोगे जिससे आपका बच्चा ठीक हो जाए। Okay? बिल्कुल। तो आप पहले देखिए कि ये डिसीज नहीं है, दिस इज अ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर। जैसे एक आदमी अशांत रहता है या फिर एक आदमी थोड़ा सा चिड़चिड़ा रहता है तो उसका वे ऑफ बीइंग है, राइट। तो एक डिसऑर्डर है। ओके और डिसऑर्डर कभी जाती नहीं है, वो बेटर होती है बाय प्रैक्टिसेस, बाय थेरेपीज, बाय प्रूवन थेरेपीज, राइट। तो लोग क्या करते हैं, मैं पेरेंट को ये एडवाइस करना चाहूंगा कि आप जैसे ही इस जर्नी में आते हो, आपको जैसे ही डायग्नोसिस मिलता है कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक है, तो आप क्या करते हो, आप यूएस से इंजेक्शंस मंगवाते हो, सुपर न्यूट्रा मंगाते हो, बहुत महंगे महंगे, उसके बाद बहुत सारे थेरेपिस्ट के जाते हो। ओके फिर आप जो चाहे वो खर्चा करना चाहते हो। इसमें क्या होता है, आपका बहुत सारा पैसा जाता है। ओके मेरा भी गया है, राइट। एंड बट नाउ एज वी आर मैच्योर्ड इन दिस प्रोसेस, जैसे मैं और आप इसमें एक्सपीरियंस है, तो हम ये पेरेंट्स को बताना चाहेंगे कि डोंट ट्राई टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम बाय मनी, है ना। तो आप राइट थेरेपिस्ट के पास जाइए। अगर आपको कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थेरेपिस्ट बोल रहा है, बहुत ज्यादा आपको फ्रीक्वेंसी में थेरेपी लेने को बोल रहा है, बहुत एक्सपेंसिव मेडिकेशन लेने के लिए बोल रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सिंपल चीजों से इंप्रूवमेंट आती है और आपकी कंसिस्टेंसी से इंप्रूवमेंट आती है। आप दोनों अगर काम करोगे तो इंप्रूवमेंट आती है, ना कि किसी थेरेपिस्ट के पास जाके। थेरेपिस्ट आपको गाइडलाइन के लिए है, बट मेन थेरेपिस्ट आप दो पेरेंट ही हो उनके। एंड मेडिकेशन हैज लिटिल रोल। अनदर की मोमेंट ऑफ दिस पॉडकास्ट शुड बी फिजिकल एक्टिविटी। देखिए अगर आप आपके बच्चों को स्विमिंग को डालोगे, साइकिलिंग को डालोगे, फिजियोथेरेपी को डालोगे, जहां उसका स्वेट निकले, वो बहुत अच्छे से एक्सर्ट कर रहा है, तो उसकी स्पीच, उसका अलाइनमेंट, सेंसर इश्यूज नेचुरली अलाइन हो गए। करेक्ट चाइल्ड लर्न थ्रू प्ले एंड दे आर डिजाइन टू प्ले। तो आप उनको मैक्सिमम फिजिकल एजुकेशन में डालिए, जैसे कि आप स्विमिंग को डालिए, या फिर अगर आपका बच्चा थोड़ा मेरा उम्र का है तो उसको जिम को लेके जाइए। मेरी वाइफ लेके जाती है जिम को, वी आर प्लानिंग टू टेक। अगर आपसे वो भी नहीं होता तो पेरेंट वॉक को लेके जाइए, मेक हर और हिम फिजिकली वेरी एक्टिव। साइकिलिंग को लेके जाइए एंड देन देखिए कि आपकी चीजें कैसे स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस। फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी की विद दिस किड्स, राइट। एंड देखिए इन ऑटिज्म का जो मेन प्रोग्नोसिस है, ओके, जो कि मेन कैरेक्टरिस्टिक है, स्पीच डेवलपमेंट, उसके बाद सेंसरी इश्यूज, ओके, and then they are socially not very well, right, so they try to be in their space, right। तो जैसे मैंने स्पीच के लिए बता दिया कि आप जैसे AAC यूज कर सकते हो, या फिर पेक्स यूज कर सकते हो, स्पीच थेरेपी कर सकते हो, ओके। बट सेंसरी इश्यूज के लिए टेक द हेल्प ऑफ राइट थेरेपिस्ट एंड फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो देखिए आपका लाइफ बहुत आसान हो जाएगा, ये मुझे विश्वास है, बहुत ज्यादा विश्वास है।
नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला सर, कि अगर मतलब हम लोग सबसे ज्यादा यही कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा पैसा खर्च करें, कि उससे लगता है कि कहीं पैसे की कमी से तो नहीं कुछ छूट जाना चाहिए, हाँ, राइट लेकिन राइट अक्सर वो गलत ही होता है। वो सारे के सारे राइट। डिसीजन जिसमें पैसे ज्यादा जा रहे हैं वो गलत होता है। थेरेपीज गाइडलाइन के लिए ही है। थेरेपी से कुछ बहुत ज्यादा सिर्फ थेरेपिस्ट कुछ नहीं कर सकते, और पेरेंट्स, जो हमारे नेबर्स हैं, या फिर वही, उनको भी अवेयरनेस उतनी होनी चाहिए कि भाई लेट्स हेल्प आउट। तो आई रियली होप कि इससे सारे लोगों को सोसाइटी में भी ये मतलब इसके लिए इंस्पायर हो कि अगर किसी का बच्चा स्पेशल है तो यू शुड नॉट जस्ट लुक अवे, यू शुड लुक एट एंड उनके साथ कोशिश करनी चाहिए मिंगलिंग करने के लिए। डेफिनेटली। बहुत बहुत सही बोला सर आपने। थैंक यू सो मच, एंड आई एम फीलिंग इंस्पायर्ड कि इसको कैसे इजीली, कितने इजीली ले सकते हैं। बीइंग एन ओल्डर पेरेंट ऑफ कोर्स ये आ जाता है, लेकिन और अच्छे से लेना और कूलली लेना, और एक्सेप्टेंस जैसे आपने भी बोला कि एक्सेप्टेंस वाज द की। थैंक यू so much, sir, for joining in and sharing your wisdom. And you were so candid and were very, very cool. Thank you so much. And I really would like to connect with your wife soon for this thing. Definitely. And all the best for your daughters. And all Thank the you best. very much. Thank you so much.